Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Devaparna Datta. I am a scientific officer of the Government of India. I am also an UPSC aspirant, and on this channel I share my UPSC journey as a working professional. If you're new to the channel, welcome, and please do not feel any pressure of liking or subscribing the channel until and unless you feel that it's of any use to you. So before going into my daily targets and achievement, I have decided that every day when I make these videos, I'll try to share some experience that I have gained in this journey. Now, please do not mistaken this channel as a guidance channel, because I don't think I'm equipped to guide anybody since I have not cracked the examination myself. But having said that, I also feel that experience is a very major component or aspect of knowledge, and the more we share knowledge, the more we get back. So, and since I saw that some of my videos have over 100 likes, which is a very beautiful feeling, and so I thought it's also my responsibility to give back something, so that it's of mutual benefit to the both of us, to anybody who is watching. So today we will talk about a problem, and it's a very simple problem. It's called reading a book. Now, scientists तो थोड़े बदनाम हैं ही that we are nerds, but trust me, I hate reading books. So the reason being that in my life as a scientist, I have to read so many research articles and research papers every day that coming back home and sitting and reading a book, मतलब पढ़ाई वाला book, is very tiring for me. Now I love reading novels, I love reading storybooks, but not the theoretical books. So when I entered this journey, this UPSC journey, as I have shared before, that I entered it a little late. Like I was already 29 when I came into this exam preparation cycle. So तब तक क्या हो गया था ना कि आई वॉज ऑलरेडी डिटैच्ड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, राइट, ये पढ़ाई वाले थियोरिटिकल बुक्स. सो सी, रीडिंग अ रिसर्च पेपर और अ जर्नल इज वेरी डिफरेंट. वो स्टाइल इज द स्टाइल ऑफ रीडिंग दोज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, and the style of reading a theoretical book for an examination is very different. But I also know that it's not only because I started late, but I know a lot of you face this problem, because I have a number of colleagues and I have a number of friends who have faced the same problem, because most of them are engineers. So वो उतनी मोटी किताबें पढ़ के यूज टू नहीं है कॉलेज के टाइम पे, राइट. सो दे गेट डिटैच बिकॉज हर एग्जाम वो एमसीक्यू वाला होता है, एंड वी ऑल गेट दोज शॉर्ट नोट्स. और इन दिस वर्ल्ड ऑफ वेयर द टेंशन स्पैन हैज कम डाउन सो मच बिकॉज ऑफ दिस फास्ट पेस वर्ल्ड एंड द रील्स एंड एवरीथिंग, अभी ना आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग विद अ बुक एंड रीडिंग इट. ये जो बोलते हैं ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग दिया, ये सुनने में बढ़िया लगता है कि हाँ हम भी कर लेंगे, लेकिन ये करने में ना मौत आती है. लाइक आई डोंट नो, आई डोंट नो, अगर नहीं आती है तो देन यू आर अ सर्टिफाइड नर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे तो आती थी. तो जब मैं आई ना इस जर्नी में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सो एंड दे आर ऑल्सो कलीग्स बिकॉज आई वर्क विद देम. सो दैट, एंड दे आर वन ऑफ द मेन रीजन्स दैट आई केम इन टू दिस जर्नी. सो बिफोर एंटरिंग ना, व्हेन आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद देम, मुझे ये तो पता चल गया था कि कुछ बुक्स हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ बुक्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, जो तो पढ़ना ही है. जैसे अगर मैं इफ आई नेम सम, लाइक देयर इज लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, देयर इज स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, देन देयर आर द एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी. सो ये ना नॉन नेगोशिएबल बुक्स हैं, तो अब इनको तो पढ़ना ही है. नाउ मेनी ऑफ यू माइट से दैट हाँ तो ठीक है ना, अगर पढ़ने में मौत आ रही है तो यू जॉइन अ फाउंडेशन कोर्स, और वहाँ तुम्हें बता देंगे कि क्या करना है. यू मेक अ शॉर्ट नोट्स एंड देन यू स्टडी. अब इन सब्जेक्ट्स में फाउंडेशन कोर्स का प्रॉब्लम क्या है पता है? लाइक यू विल एंटर अ फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़ने की, लक्ष्मीकांत में तो बहुत गलतियां हैं, और बैड एक्ट पढ़ लो. अब आप पढ़ लोगे बैड एक्ट, फिर आप कुछ मॉक्स फेल करोगे, आप 1-2 प्रीलिम्स फेल करोगे, और फिर आप सीनियर से सजेशन मांगने जाओगे कि क्या भैया, या व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, एंड दे विल टेल अरे लक्ष्मीकांत तो नॉन नेगोशिएबल है, लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है. फिर आप आफ्टर यू हैव वेस्टेड एन अटेम्प्ट और सो, यू विल देन अगेन सिट विद लक्ष्मीकांत. तो इससे अच्छा पहले ही समझ लो ना कि जो नॉन नेगोशिएबल बुक्स है, जो सब लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना ही है, उनको तो पढ़ना ही है.
तो अब देखो, देर आर ऑल्सो टॉपर्स हुसे कि मैंने तो कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, इट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट वो बहुत रेयर है ना यार। मतलब मैक्सिमम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, मैक्सिमम टॉपर्स तो बोल रहे हैं ना कि ये बुक्स नॉन नेगोशिएबल है, तो क्यों अलग बनना है? मतलब एक होता है कि नहीं, मतलब एक होता है कि यूनिक बनना, और एक होता है कि भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो देखो, रिस्क कितना है ना इस यूनिकनेस में, तो क्यों बनना है यूनिक? तो इतना तो मुझे बहुत अर्ली इन द प्रिपरेशन पता चल गया था कि कुछ बुक्स हैं नॉन नेगोशिएबल है, पढ़ना ही है। तो मैंने क्या किया इनके लिए, और इन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज मुझे पता था कि मैं इन बुक्स से प्रीलिम्स क्रॉस करूंगी, एंड आई विल ऑल्सो फॉर द मेन्स आई विल टेक अ मेन्स वाला कोर्स। बिकॉज एक तो मुझे ना इस इकोसिस्टम से भी बहुत प्रॉब्लम है कि आप ना पूरा फाउंडेशन कोर्स करते हो, उससे ना कभी कभी आपका प्रीलिम्स निकलता है ना मेंस निकलता है, उसके बाद दे विल लॉन्च प्रीलिम्स वाला कोर्स जिसमें वो आपसे ऐसे बिहेव करेंगे कि आप तो पढ़ के ही आ चुके हो लक्ष्मीकांत, फिर आप मेंस वाले कोर्स में जाओगे और फिर आपको रियलाइज होगा कि गेम ही पूरा अलग है। मतलब मेंस की प्रेपरेशन ही पूरा अलग है। सो व्हाई नॉट इंटीग्रेट एवरीथिंग? मतलब पता नहीं, आई पर्सनली हैव एन इशू विद दिस, एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस लोग इस डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो मे बी इट्स नॉट द राइट प्लेस और इट्स नॉट माई प्लेस टू टॉक अबाउट इट। बट मुझे इस इकोसिस्टम से बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज ये पूरा तो इसीलिए ना मैंने बहुत सब्जेक्ट्स के लिए कोई फाउंडेशन कोर्सेज नहीं किया। जो सब्जेक्ट्स मुझे लगे ना जिनका कोई नॉन नेगोशिएबल बुक नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, IR हो गया, जैसे एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, वो तो वैसे मेरे ही सब्जेक्ट्स है, पर ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके लिए कोई नॉन नेगोशिएबल बुक नहीं है, उनका मैं किसी से कोर्स कर लूंगी ना, उनके नोट्स बना लूंगी एंड आई विल स्टार्ट रीडिंग देम। पर जिनके बुक्स पता है, उनसे बुक से लक्ष्मीकांत से 15 सवाल उठ के आ रहे एग्जाम में, उसके लिए मैं क्यों भागूं किसी फाउंडेशन कोर्स में, है ना? वो बुक्स तो मुझे पढ़नी ही है। तो अब ये मुझे अर्ली प्रिपरेशन में समझ आ गया था, थैंक्स टू ऑल्सो माई फ्रेंड्स हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम एंड हु वर ऑफ अ गुड, मतलब हु गाइडेड मी वेल। तो अब मैंने जाके किताब खरीद ली, ये मैं बहुत अर्ली इन द प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ कि 2023 एंड ऑल दैट। तो मैंने जाके किताब खरीद ली। अब ऑफिस से आती थी और किताब खोलती थी तो आती थी मौत उसको पढ़ने में, बिकॉज हैबिट नहीं है, नया सब्जेक्ट है, बोरिंग भी है यार। मतलब पहली बार, चलो अब पॉलिटी अच्छे से समझ आती है तो लगता है वाओ इट्स सो इंटरेस्टिंग, बट पहली बार किसी को मोटी सी किताब दे दो और उसको पढ़ने बोलो और बोलो कि एग्जाम क्रैक करना है, बोरिंग तो है। मतलब कम ऑन, लेट्स फेस इट, है। तो अब, और स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो उठा के ह्यूमैनिटीज वाले किताब लगते हैं यार बोरिंग। मतलब ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आई नो 60-70% ऑफ अस आर फेसिंग इट, और इसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इट कि यार मुझसे नहीं पढ़ी जा रही है, इट्स ओके। मतलब जिनसे पढ़ी जा रही है वेल एंड गुड, आपको मोटी किताब पढ़ने की हैबिट है, आप कर लेते हो, वेरी गुड, बट नहीं होती यार सबसे। तो अब क्या हुआ, तो मैं 5 दिन बैठी, 10 दिन बैठी, तो मैं 20वें पेज पे हूँ या 30वें पेज पे हूँ, जहां मुझे 15 दिन में एक रीडिंग तो खत्म करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है मुझसे। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ वे अराउंड इट, ठीक है। अब तब मुझे ना, आई केम अक्रॉस दिस चैनल, इट्स बाय हर्षित द्विवेदी, ठीक है। आई डोंट नो दिस पर्सन, आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम, बट या यू शुड गो एंड चेक। तो वो क्या करते हैं ना, वो लक्ष्मीकांत को ही लेके आपको लाइन टू लाइन लक्ष्मीकांत को ही पढ़ाते हैं, बट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। मतलब वो उन्हीं लाइन्स को पढ़ाएंगे बट विद अ बैकग्राउंड स्टोरी ऑल्सो। अब इसमें और फाउंडेशन कोर्स में फर्क क्या है? कोई आपको पढ़ा भी रहा है, आपकी छोटी अटेंशन स्पैन को केटर भी कर रहा है, बिकॉज आप 2x में सुन सकते हो उनको, क्योंकि आपको मगअप तो करना नहीं है, नोट्स बनाना नहीं है, आप डायरेक्टली 2x में सुनो। आप समझ लो उस चैप्टर में क्या है, 20 पेज का अगर चैप्टर है, आप समझ लो उसमें क्या है। उसको समझने में आपको 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे अगर आप 2x में सुन रहे हो। उसके बाद आप पढ़ो ना वो चैप्टर, एंड इट विल बिकम सो इजी एंड इट बिकम सो इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कि हाँ चलो आई नो द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस, बिकॉज वो हिंदी में समझा रहे हैं, वो इंग्लिश में समझा रहे हैं, वो इंग्लिश में समझा रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी ईजी। और फिर ना लक्ष्मीकांत की ही एक क्वेश्चनर की बुक आती है कि वो चैप्टर का ही क्वेश्चन, इन द एवरी चैप्टर का क्वेश्चन वाइज है, मतलब एवरी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसमें। तो वो बुक ले लो। जैसे आपने इस हर्षित द्विवेदी सर के साथ एक रीडिंग लगा ली, खुद का एक रीडिंग लगा लिया, हाईलाइट कर लिया, उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और देखो, जब आपको 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे ना उस बुक से, और फिर आप PYQ में भी देखोगे रही है तो इस बुक से डायरेक्ट उठ के आता है, आपकी इतनी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी ना कि आपको लगेगा चलो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन तो हो जाएंगे मेरे, 15 ना हो 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, दैट्स एनफ। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 100% थोड़ी लाना है। तो अगर लाना होता तो थोड़ी पूरे एग्जाम का कट ऑफ 40-50% तक ही जाता, है ना। तो ऐसे आई फाउंड वेज अराउंड सब्जेक्ट्स विच आर नॉन नेगोशिएबल। तो ये तो पॉलिटी का हो गया। सिमिलरली आई शेयर की मैंने एमैक के लिए क्या किया, सबका अलग है थोड़ा, एमैक के लिए क्या किया, फिर ज्योग्राफी के लिए क्या किया, और फिर स्पेक्ट्रम के लिए भी क्या किया। हाँ, तो जैसे ही मैंने ये कर लिया ना, उसके बाद ना मैंने लक्ष्मीकांत को तोड़ लिया।
ऐसे छोटे छोटे, बिकॉज मुझे मोटी किताब से प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा आई विल ट्रिक माई माइंड, तो मैंने उसको ना ऐसे छोटे छोटे बंडल्स में तोड़ लिया। और ये बंडल्स ऐसे नहीं है चैप्टर वाइज, ये है सेक्शन वाइज, जैसे स्टेट का एग्जीक्यूटिव, सेंटर का एग्जीक्यूटिव मैंने एक साथ कर लिया, तो वो एक बंडल बन गया। लेजिस्लेचर भी ऐसे एक साथ कर लिया। तो जिसको जिसके साथ पढ़ना है, जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो गवर्नर आपको पढ़ना बहुत ईजी होता है, एक ही रीडिंग मारना होता है उसके बाद, मतलब है ना। तो ऐसे करके आप उन चीज़ों को क्लब कर लो, एंड ऐसे 8-9 सेक्शंस में बढ़ जाएगा बुक, एंड देन इट विल बिकम सो इजी। आप उसके बाद ही वो 4-5 रिविजन, जो टॉपर्स बात करते हैं ना कि 4 डिविजन मार लिए, 5 रिविजन, इट विल बिकम सो इजी फॉर यू एज वेल, यू कैन डू इट एज वेल। आपको नहीं जरूरत है यार किसी फाउंडेशन कोर्स के इस पे डिपेंड करना, बेयर एक्ट पढ़ लेना। देखो, नो टीचर इज बैड, नो बडी वॉन्ट्स बैड फॉर यू, राइट। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, सो आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी हियर। बेयर एक्ट पढ़ना इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स ओके, यू शुड नो द आर्टिकल्स, बट द थिंग इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो देखना है ना यार। अब मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास तो कभी टाइम नहीं होता, ठीक है, मतलब कभी भी मुझे टाइम मिलता है मुझे लगता है कम ही है, तो इसीलिए मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, मतलब वो करना कि बेयर एक्ट उठा के पढ़ ले रही हूँ। हाँ, मैं तब पढ़ूंगी ना जब मुझे लगेगा हाँ कुछ आर्टिकल में उठा के अपने मेंस के आंसर में लिखूंगी, पर उसके लिए भी जरूरत नहीं होता है बेयर एक्ट पढ़ना। आपको अगर किसी पर्टिकुलर आंसर, आई विल टॉक अबाउट द मेंस थिंग कम्प्लीटली सम टाइम एल्स। और मैंने एक तो मेंस क्रैक भी नहीं किया है अभी तक, रिजल्ट भी नहीं आया है, शायद होगा भी नहीं, तो आई शुडंट बी द वन टॉकिंग अबाउट इट। बट देखो, प्रीलिम्स मैंने किया है और बहुत अच्छे मार्जिन से किया है। आई एम गेटिंग एनीवेयर बिटवीन 120-130 मार्क्स, सो एटलीस्ट वो तो मुझे पता है ना व्हाट आई एम स्पीकिंग। सो ट्रस्ट मी, अगर आपको भी ऐसी किताब उठा के पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना, डू दिस ट्रिक, गो टू दैट चैनल, 60-70 वीडियोस होंगे, पर आपको क्या, आपको 2x में सुनना है, जल्दी जल्दी स्टोरी पता चल गई, फिर आप रीडिंग मारो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो उस क्वेश्चन के, और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर। सो एनीवे, इतना ही बोलना था। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ए मैथ्स, सिमिलरली ज्योग्राफी, जिनका बुक्स नॉन नेगोशिएबल है उनको कैसे डील करना है, आई विल टॉक अबाउट इट। सो आज बस पॉलिटी की बात करते हैं, ऐसे भी 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो एंड अबाउट माई टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स, कल वाला तो पानी में ही क्योंकि माइग्रेन अटैक था, माइग्रेन अटैक आया था एंड वॉज वेरी सिवियर, तो मुझे लगा 3 बजे उठ के आई विल कंप्लीट माई टारगेट्स, हो नहीं पाया, सुबह 8 बजे उठी, अभी भी कल का ही टारगेट कर रही हूँ तो इसीलिए आई विल हैव टू जल्दी से फिनिश, एंड फिर आज के टारगेट में चली जाऊंगी शायद 8 PM तक, और कोशिश करती हूँ खत्म करने के लिए। मंडे इज अ हॉलीडे विच इज अ गुड न्यूज़। और बाय द वे, हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी हु इज सेलिब्रेटिंग एंड एवरीबडी हु इज नॉट। और आई थिंक आई मेक अ वीडियो टुमारो, बट फिर भी आई वॉन्टेड टू विश यू सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड आई होप I was of some help. Thank you.